Hi, hello, welcome everyone. This is Dharani Krishnan. I hope everyone is doing good and staying safe at home. So today I'm going to have a conversation with my friend Ms. Vidipta Das. This is special for me because she's my online friend and हम लोग ने ना ही कभी ऐसे कुछ वीडियो कॉल किया है या हम कभी मिले हैं एक दूसरे को. It's been I think more than 3 years we know each other. And I'm super excited for this. More about Vidipta. So Vidipta is a science student who has interest in acting. She is a theater artist and she recently got an opportunity to be a part of LIC's advertisement. And I'm super, super, super proud of her. So if you guys are watching LIC का advertisement, and अगर वहां पे तुम्हें कोई पिंक कलर चूड़ीदार पहनी हुई बंदी दिखती है, तो she is my friend. Okay, I know her. That's it, ladies and gentlemen. That's the whole point. मैं उसे जानती हूँ, she's my friend. I'm super proud of her. Now we'll be talking more about that experience, how she got that opportunity and everything. So firstly, let's invite her to this meeting. Actually I was super excited कि पहले बार हम लोग ऐसे मिल रहे हैं. हाँ. अरे मेरा पता है पूरे साल जितने भी Zoom मीट्स में मैंने एक बार भी वीडियो ऑन नहीं किया है, so it's okay. This is just gonna be us having a good conversation. So ठीक है. Yeah. So Vidipta कैसी है? हाँ, अच्छी हूँ शायद से, ठीक ठाक हूँ मैं. तू कैसे है बता? Same condition है, सब चल रहा है बस. हाँ, सब चल, life is happening. हाँ. Okay. So Vidipta, how would you like to introduce yourself? Go ahead and introduce yourself. So hi, I'm Vidipta Das and I recently completed my graduation and I'm a science student. But yeah, only after completing my graduation, I realized that I really don't want to do anything related to science. So I am an actor, I'm an aspiring actor and also a filmmaker. Like I'm learning on the go. But yes, I wish to be an artist in future. Okay, that's amazing, Vidipta. So let's start with the interview. The question. Yeah. Okay. So when did you start developing an interest acting? So I think more than acting, I think सबसे पहले मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्टेज पे जाने का जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले डेवलप हुआ. तो आई रिमेम्बर आई वाज 3 years old जब मैं जूनियर केजी में थी एंड हमारे स्कूल से बोला था कि देयर इज अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन. तो आई रिमेम्बर पापा ने तो बोला था कि ये फैंसी ड्रेस का मतलब कुछ यूज ही नहीं है, हम लोग कपड़े भी भाड़े पे ले और हमारा ही पैसा जाए और उन लोग मतलब व्हाट देयर इज नो यूज. सो डैड सेड इसमें लेने की कोई जरूरत नहीं है. बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, मुझे लेना है, मुझे जाना है, मुझे भी फेरी एंड ऑल बनना है. So my mom said कि फेरी एंड ऑल तो हम नहीं बना सकते because we have to take clothes on rent and all of that, but she said that कि you can participate. So उन्होंने कैसे एक साड़ी ढूंढी जो थोड़ी सी वो टोन थी. So उन्होंने मुझे भाजी वाली बनाया. एंड हमने बाजू वाले भाजी वाले से वो टोकरी लाइक लिया एक दिन के लिए एंड आई बिकेम अ भाजी वाली. फिर मम्मी ने मुझे बोला ये बोलना है ऑल ऑफ दैट. और उससे पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ी थी बिकॉज आई वाज 3 years old. So and I remember I was very excited. मतलब मैं नर्वस नहीं थी, मुझे ऐसा था कि मुझे भी जाना है and then I actually went on stage and I remember भाजी ले लो I was saying. I remember मैं स्टेज से नीचे उतरी and मैंने अपना भाजी लिटरली 2 लोगों को बेचा. अभी एक ककड़ी बेची थी और एक गाजर बेचा था. And then I came back and when my performance was over, everybody was clapping. कोई टीचर भी क्लैप कर रहे थे. And then I went backstage and I think that was the first time when I मतलब मुझे प्यार हो गया उस चीज से. मतलब उसके बाद जो भी कॉम्पिटिशन है, इवन आई डोंट नो मराठी, मैं भले ही मुंबई में रहती हूँ, मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन आई रिमेम्बर अगर कोई मराठी पोएट्री कॉम्पिटिशन भी है तो भी आई वुड जस्ट टेक पार्ट बिकॉज आई वांट टू परफॉर्म and I want to be there stage. And so I think I fell in love with stage. And also one more thing that जब मतलब मैं बचपन से थोड़ी सी मैं बुद्धू टाइप की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि when we see टेलीविजन तो मुझे लगता था कि जो टीवी का स्क्रीन है अगर आप उसको तोड़ दोगे तो आप उसके अंदर घुस सकते हो. Okay. एंड मुझे सो आई रिमेम्बर बचपन में मैं ना ऐसे टीवी में जब भी कोई डांस चल रहा होता था या कुछ भी हो रहा होता था, आई टू लाइक बैंग द टेलीविजन. और मम्मी मुझे लेके जाती थी कि मुझे लगता था कि मैं अंदर घुस जाऊंगी ऐसे करके. सो आई हैड अ ड्रीम कि मुझे टीवी के अंदर घुस बचपन में. सो मेरे को हमेशा टीवी से दूर रखते थे बिकॉज आई वुड जस्ट स्टार्ट बैंगिंग इट. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट
तभी मुझे पता तो नहीं था कि मुझे एक्टिंग ही करना है, बट आई थिंक धीरे 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 द लव दैट आई हैव फॉर स्टेज, आई रियली डाई टू गो ऑन स्टेज, एंड देन धीरे 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 आई डेवलप लाइक मोनोलॉग्स करना या स्कूल में कुछ नाटक करना या एलिक्यूशन, मतलब एवरीथिंग, लाइक धीरे धीरे वो हुआ। आई नेवर न्यू, और तभी तो इवन माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट, बिकॉज बचपन में हर कोई सपोर्ट कर देता है, बिकॉज ऑल ऑफ दैट। बट आई नेवर थिंक दैट दे इमेजिन कि ये शायद मुझे आगे जाके भी करना होगा। एंड आई ऑल्सो, मतलब आई थिंक कॉलेज में मैं जब आई, और मतलब 13 में मैं जब गई एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, एंड तभी मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई वुड रियली एंजॉय डूइंग इट। So I think, yeah, that's about it. Okay, that's great. So अभी लॉकडाउन में एज यू सेड कि तुझे स्टेज में परफॉर्म करना सब बहुत पसंद है, so मैं भी लाइक हम जब डांस करते हैं तो आई रियली मिस दैट, क्योंकि भले हम जितने वीडियोस निकाले, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑन स्टेज, राइट? तो कैसा लगता है अभी, मिस करते रहेगी ना? बहुत बहुत ज्यादा मिस करता है। आई थिंक, यू नो, स्टेज एंड देन उसके पहले रिहर्सल्स भी फॉर दैट मैटर, मतलब there are times when we had 12 hour long rehearsals, but very frankly मेरा प्रैक्टिक, मतलब आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरा प्रैक्टिकल शायद 2 घंटे का होता है, बट वो 2 घंटा भी मैं कैसे कैसे बैठ के, मतलब आई जस्ट रन अवे। बट रिहर्सल 12 घंटे के होते हैं, वी डू प्ले, वी डू प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, लेकिन टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, एंड वी फील गुड। सो आई रियली मिस द रिहर्सल्स, लाइक द फीलिंग ऑफ स्टेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप कितना भी घर पे कर लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, वो एक कुछ और ही बात होती है, एंड आई एम रियली डाइंग टू गो देयर। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ एम्बिशन कि मैं थर्ड ईयर में ये प्ले करूंगी, वो प्ले करूंगी, बट एवरीथिंग जस्ट चला गया सब कुछ। बट लेट्स होप जल्दी सब ठीक हो जाए, बिकॉज यू नो इट्स ऑल्सो गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। मतलब मैं थिएटर करती हूँ तो मैं बहुत खुश भी होती हूँ, एंड स्टेज या जो भी चीजें हो, एनीथिंग, आई जस्ट फील रियली हैप्पी, विच आई एम मिसिंग। आई होप इट गेट्स रीस्टार्टेड जल्दी से। वी ऑल होप कि सब जल्दी हो जाए, क्योंकि बाहर जाने को ही नहीं मिल रहा है, कितना दिन हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा टाइम हो गया घर पे बैठे बैठे, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर एन आर्टिस्ट। नहीं रहा, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू सेड कि यू नो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, बाहर डिफरेंट फीलिंग, प्लस दैट्स हाउ इट हैज टू बी डन, वी कैन नॉट ब्रिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। दैट्स ट्रू, लाइक वी आर ट्राइंग आवर बिट टू डू इट ऑनलाइन एंड ऑल, बट जो वो एक मजा है वो उधर ही मिलता है। ऑल्दो अभी हम मैनेज कर रहे हैं, दिस इज द न्यू नॉर्मल, बट I'm really waiting for everything to restart again. Okay, so you told me about filmmaking, and I think you're working on something. You're working on an internship or something. So can you tell me about it? Yeah, so filmmaking now, as I said, I'm a science student, so I have no knowledge. Like, I don't get the knowledge from my college or anything. But I'm lucky to be in a college that really promotes all these things. So मैं मिठी बाई में हूँ, and मिठी बाई के मतलब अंदर ही एक कॉलेज है, that is UPG. So UPG में there's a course called as BA in filmmaking. So there are a lot of people who know about filmmaking, who talk about filmmaking, and luckily there's a group, there's a group जो मतलब ये सारी चीजें करता है। So what I try, because मैं कोर्स तो नहीं कर सकती because I'm already a chemistry student, but what I try is to gain more practical knowledge. So जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, या even I get any internship that is related, like little bit also related to filmmaking or anything, then I just go up for that. Even the internship that I'm doing, right now, that is also related to like filmmaking, or like that is not related to filmmaking, but I'm learning the process and the documentations and everything through it. So wherever I get a mocha, I do grab it. That's how I'm learning. Yeah, that's how we learn. Same here. Okay. Yeah. Moving ahead, I wanted to know what kind of characters do you love playing? ऐसे कोई specific characters होते हैं क्या जो अभी इतने सारे experiences में बचपन से कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद है? I really like to मतलब पर्सनली जब मैं कोई कैरेक्टर लिखती भी हूँ, अगर खुद से मोनोलॉग वगैरह परफॉर्म करना, तो नोटिस दैट आई रियली लाइक यू नो जो एक वुमेन की चीजों को बताता है, मतलब as females we have a lot of things that we go through that are very normalized in the society, and like people don't talk about it much. We are very oppressed in a lot of things, be it periods or be it anything. Okay, so I think जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो अपना जो एक दबा हुआ कैरेक्टर है और वो अपने अंदर जो भी दबा है उसको निकाल रहा है, आई थिंक दैट आई लाइक प्लेइंग दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, एंड ऑल्सो कैरेक्टर्स हु आर यू नो हु हैव अ लॉट टू स्पीक, जिन्हें बोलना है, अपने अंदर की भड़ास निकालनी है, तो वो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। कैरेक्टर्स तो मैं सारे प्ले करती हूँ, बट या दीज आर द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई एंजॉय, एंड ऑल्सो
negative characters, I think I sort of enjoy, because yeah, if I was not this Vidipta, then I would have been the negative Vidipta, because so somehow living that Something life. that you are not. Yeah, something that I am not, but there were chances of me being that. So yeah. Okay, so was there any specific role जो तुझे मतलब तूने कभी थिएटर किया रहेगा उस रोल में? So क्या था exactly वो रोल? Can you explain it to me? कि ऐसा रोल था and वो feeling में भी in words. So I think मेरा मतलब कॉलेज में सबसे पहले, because कॉलेज में आप जाते हो तो पहले पहले you will not get like full fledged roles. But I remember मेरे को ये वाला सबसे ज्यादा याद है, because this was one of the roles that I got, मुझे सबसे पहले ये मिला था. So I was a mom जिसने अपने बच्चे को खो दिया था, and now उसे लगता है कि दूसरे का जो बच्चा है वो उसी का है. तो that was a very very small role, like it was a part of the mob, and मुझे अपने बच्चे को लेके भागना था, और मेरे एक दो डायलॉग थे, मुझे ऐसा था कि मुझे थप्पड़ खाना था, क्योंकि उसकी मम्मी उसके बच्चे को मैं छीनने की कोशिश करती हूँ, एंड शी स्लैप्स मी. सो दैट वाज अ रोल आई रियली. तो रिहर्सल होते थे तो हमारे डायरेक्टर में बोलते थे कि रियल में प्रैक्टिस करो, तो वो उतने बार थप्पड़ खाना पड़ता था. एंड दैट इमोशन आई रियली ट्राइड टू कैरी इट थ्रू. बट या दैट वाज समथिंग जो मुझे याद है, बिकॉज इट वाज आल्सो द वेरी फर्स्ट रोल दैट आई डिड. तो वो मुझे बहुत ज्यादा याद है, एंड द प्रोसेस वाज ग्रेट. एंड मुझे ना ऐसा लगता था, मतलब जब वो, क्योंकि मैं थिएटर तभी करना चालू कर रही थी, मैंने मोनोलॉग वगैरह पहले किया था, बट थिएटर डूइंग इट विद एवरीबडी एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे याद है कि जब हमारा परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस के पहले तक, मतलब जब हम लोग बैक स्टेज में थे बेसिकली, एंड हमारा स्टार्ट होने वाला था, मुझे लग रहा था शिट, मुझे इसमें नहीं लेना चाहिए था, शिट मैं कुछ भूल गई तो क्या होगा, पूरा प्ले मेरे वजह से खराब ना हो जाए, ऑल दैट. एंड मतलब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा, मतलब होता ना कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की, बिकॉज इट्स थिएटर एंड योर एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, सो इफ यू डू अ मिस्टेक द होल टीम विल सफर. तो ऐसा लग रहा था कि शिट मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, मैं नहीं लेती तो बेटर होता. बट देन देयर इज दिस मोमेंट व्हेन वो बैक स्टेज से तुम जब स्टेज पे कदम रखते हो, दैट मोमेंट इज जस्ट सो प्रेशियस. एंड देन आई वेंट, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. इनफैक्ट मैंने तो कुछ गलती नहीं की, बट मेरे टीम मेंबर में से किसी एक ने, मतलब ऐसा एक सीन था व्हेन आई वाज डेड, एंड मेरे को किसी को उठा के लेके जाना था, बट समहाउ समवन फॉरगेट टू पिक मी अप. एंड आई रिमेम्बर कि तो आई वाज, तो फिर एंड मैं मर गई हूँ, तो जस्ट इमेजिन मैं मर के उठ के तो मैं जा नहीं सकती. तो आई रिमेम्बर मैं उधर ही सोई हुई थी जब तक मेरे को किसी ने उठाने नहीं लेके गया, एंड द प्ले वेंट वेरी स्मूथली, एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और सबने बोला वाओ विदिप्ता, यू वर रियली ग्रेट, एंड दैट वाज ग्रेट. And you मुझे handle लगा that ओके. situations pretty well, right? जो on spot या होता है या ऐसे. या या और मुझे लग रहा था कि मैं ही कुछ गलती कर दूंगी, बट एट द एंड इट वाज ऑल लाइक अमेजिंग, सो इट्स ग्रेट. Okay, so ऐसे लगता है अभी क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी इम्प्रूव हुआ है थिएटर करने के बाद? क्योंकि एवरी टाइम वी डू समथिंग वी लर्न, कुछ तो सीख के जाते हैं. 1% इम्प्रूवमेंट. So अभी while the performance stage, what are the things that you have personally felt कि काफी improve हुआ है ये चीज मुझ में? आई थिंक व्हेन आई एम एक्टिंग, आई थिंक जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा, मतलब अभी मुझे ऐसा, मैं नर्वस अभी भी होती हूँ, बिकॉज या ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नर्वस, बिकॉज यू आर नर्वस, दैट मीन्स यू आर रियली केयरफुल, यू आर रियली केयरिंग अबाउट योर प्रोडक्ट. मैं नर्वस ऑन होल होती हूँ, लेकिन मुझे ना अभी एक थोड़ा सा लगता है ओके मैं ये कर लूंगी. या अभी क्योंकि हम लोग थिएटर में पता है इम्प्रोव करते, तो ऐसा लगता है कि मैंने अगर कुछ गलत भी कर दिया तो उस गलत को मैं सही कर पाऊंगी ऑन स्टेज ओनली. सो वो एक कॉन्फिडेंस मुझे पहले नहीं था जो अभी है, कि आई कैन मेक अप फॉर माई मिस्टेक इवन इफ आई मेक देम. एंड हमारे मतलब जितना भी सीखा है कि इट्स ओके टू फंबल, बट इट्स नॉट ओके, तुम फंबल करोगे तुम इंसान हो, बट लाइक मेक इट अप, जस्ट दैट. थ्रू थिएटर आई वुड रियली से आई रियली लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, बिकॉज थिएटर में ना हर चीज आपको मिलता है, आपको अच्छी चीजें भी मिलती है, आपको बुरी चीजें भी, एज इन आपको रिजेक्शन भी मिलता है, आपको आप शायद कोई चीज ना कर पाओ और शायद कोई आपसे बेहतर करे, आप वो सब भी देखते हो. या आपको ऐसा भी हो सकता है कि यू थिंक someone is not as good as you but getting the opportunity, so you learn a lot about life from theater, because you know I was not sure कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे फिल्म मेकिंग ही करनी है बिफोर आई डिड थिएटर. मतलब मुझे ये सारी चीजें पसंद थी एज अ हॉबी, मैं बहुत एंजॉय करती थी, पर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ओके आई विल एक्चुअली टेक दिस अप एज अ करियर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें यही सिखाया गया है कि वी नीड अ स्टेबल जॉब. एंड देन मतलब बेसिक तो ये कि आप एक स्टेबल जॉब कर लो, फिर 25 में आप शादी कर लो, देन हैव अ गुड संसार कर लो एंड ऑल ऑफ दैट. तो वही मैंने मतलब वही सब सुना हुआ था, तो आई नेवर रियली थॉट ऑफ टेकिंग
a step of being an artist because it's really difficult. मतलब it's not like you give an IAS exam, आप select हो गए और the process is not straight. It's like this, and Yeah. it's really risky. But yes, after doing theater, I really learned the importance of happiness. Because you know, when we do theater, हमें कोई पे नहीं मिलता, हमें कोई पैसे नहीं देता है 12 घंटे रिहर्सल में बैठने के या ये करने के. लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि आई एम सो हैप्पी ओवर हियर कि अगर मैं विंग में भी बैठी हूँ, अगर मैं प्रोडक्शन भी करी, इवन इफ आई एम नॉट एक्टिंग और इवन आई एम नॉट द लीड एक्टर और एनीथिंग, इवन इफ आई एम डूइंग द लीस्ट ऑफ द थिंग, बट आई एम स्टिल सो हैप्पी. जो मुझे शायद जब मैं लैब में होती हूँ मुझे नहीं मिलता, या अगर मुझे पढ़ने बोल रहे हो तो मुझे नहीं मिल रहा है वो जो मुझे इधर, वो जो खुशी मुझे मिल रही है बेसिकली. इवन इफ आई एम फेलिंग और आई एम पासिंग व्हाटएवर इट इज, मुझे जो खुशी मिल रही है. सो आई रियली, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इज समथिंग दैट नो वन नेवर टॉट मी. बिकॉज व्हाट इज हैप्पीनेस? दैट यू हैव अ जॉब, देन यू गेट अ बॉय, लाइक यू मैरी समवन और तुम्हारे बच्चे हैं. सो पीपल नेवर टॉट मी इंडिविजुअल हैप्पीनेस क्या होती है. जो आई थिंक मुझे थिएटर में मैंने वो लिटरली एक्सपीरियंस किया. द हैप्पीनेस दैट आई हैव, दैट यू गेट, लाइक यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग पेड. मतलब आपको एक चीज जो आपको पैसा भी नहीं दे रहा है, इससे फिर भी आप अगर उस चीज को इतना एंजॉय कर पा रहे हो, एंड आई रियली अंडरस्टूड कि दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, लाइक मुझे लाइफ में खुश रहना है, एंड दैट इज द रीजन आई वुड डू व्हाट आई वुड डू. And So exactly really learned a lot. No, go ahead. Yeah. Go, finish it. Yes. No, I was just saying कि मैंने थिएटर से इनफैक्ट पेशेंस क्या होता है वो भी बहुत सीखा है. बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी पीपल एंड वेरी लिमिटेड रोल्स. तो पहले ऐसा लगता था कि नहीं मुझे तो जाना है और मुझे सिर्फ एक्टिंग, मतलब मुझे ले बस रोल करने को, मतलब मुझे बस लीड मिल जाए, ऐसे मिल जाए. क्योंकि स्कूल से मतलब जितना सीखा था वैसा ही होता था कि अच्छा तुम सिलेक्टेड हो. बट व्हेन यू गो टू कॉलेज यू आल्सो लर्न अ लॉट ऑफ रियलिटी दैट यू आर नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू. सो यू आल्सो लर्न दैट. एंड आई रिमेम्बर कि पहले मेरा सिर्फ वही गोल था कि सिर्फ एक्टिंग करना है, मुझे तो जाना है और मैं ऑडिशन दूंगी और मेरे को ले लेंगे, ऐसा था. लेकिन व्हेन यू गो इन थिएटर you understand how to make a product. Basically production hai, there are light, there are set, there's a director, there's a writer who has written the play. So the whole ensemble who makes the thing work. So and when I went there, in fact even filmmaking के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, but when I went there I saw the director, I saw the how you write, and I also जो भी थोड़ा बहुत मैंने लिखा है उधर से ही start हुआ. So everything that started, you know, it's a surety that I have now in my life about what I really like or what gives me happiness is what I got from theater. And I'm really thankful that I chose मिठी बाई because इससे पहले मैं जिस कॉलेज में थी वहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था फॉर कल्चरल एक्टिविटीज फॉर साइंस स्टूडेंट्स. बिकॉज यू ऑल्सो नो वी हैव प्रैक्टिकल्स आधा दिन हमारा लेक्चर है, उसके बाद हमारा क्लासेस, so we don't have time. But yeah, I'm really lucky कि मिठी बाई में the college that I'm in, मिठी बाई उधर कल्चरल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. एंड मेरा मेन मोटिव भी यही था कि मुझे ये करना है, इसीलिए मैं गई. पढ़ाई तो पार्ट टाइम में कर लेती हूँ कभी कभी. So I think I'm really thankful Mithi Bai happened and theater happened and Mithi Bai drama team happened. I really learned so many things, and I'm really sure about, like, if I have this kind of surety, then that is because of theater that I did. So yeah, learn life from theater. A huge shout out to Mithi Bai's theater team. Yeah, really. Everybody who taught me, all the seniors and everybody, yeah. Okay. So moving ahead. अभी हमने स्टडीज के बारे में तो बहुत बातें कर ली कि भाई हम साइंस स्टूडेंट हैं और हमें करना कुछ और. ठीक है. So how do you manage your studies and passion together? Like जब थिएटर का प्रैक्टिस होता था एंड कॉलेज का एग्जाम्स भी चल रहे, so how did you do that? हाँ. See, so after 12, in fact मैंने ना actually after 10 I was very sure कि मैं इस दुनिया में सिर्फ साइंस लेने के लिए ही आई हूँ और मैं तो शायद साइंटिस्ट भी बन जाऊँ. मैं इतनी स्कॉलर हूँ कि मतलब आई माइट बिकम द नेक्स्ट आइंस्टाइन. बिकॉज लोगों ने ऐसा ही, मतलब यू नो, यू गिव दिस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पीपल टेल यू आर मेड फॉर इंजीनियरिंग, यू आर मेड फॉर मेडिकल, oh you got 85%, you should take science. So all these things, और मैं बच्ची थी और so मुझे ऐसा लगा कि बस मैं I am the next scientist that is here. But जब, और I am from SSC board, I would also like to mention this, I am from Maharashtra board. जिसमें ऐसा होता है कि 10 तक तो आपके चैप्टर्स ही इतने कम होते हैं, सब इतना इजी होता है कि यू फील आप आइंस्टाइन, नेक्स्ट आइंस्टाइन आप ही हो. But then you go to 11th standard and you take science and you understand it's literally like an ocean. आपको रेगुलरली सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी एंड मतलब यू नो एक टीचर मुझे समझा रहे वो चीज मुझे समझ गया, बट टू रिकॉल एवरीथिंग एंड राइट इट इन द एग्जाम एंड चैप्टर्स 20-25 एक मतलब ऑल ऑफ दैट, एंड आई अंडरस्टूड कि आई डोंट रियली सी अ फ्यूचर इन दिस. मतलब मुझे इसमें करियर नहीं बनाना है.
Okay. आई अंडरस्टूड दैट 11th में, मतलब जब भी मैं बीच में थी तो मुझे समझ में आ गया, हाँ यार ये मुझे नहीं करना है, शायद मैं क्या कर लूंगी जान के कि एटम में क्या हो रहा है, या क्या करूंगी मैं इन चीजों से। ओके, यू गिविंग मी नॉलेज इज ओके, बट व्हाट विल आई डू विद देम? एंड नो ऑफेंस टू एनीबॉडी जो करते हैं, मतलब रियली ग्रेट पीपल, जो साइंस समझ में आता है, मुझे समझ में तो आता था, लेकिन उसको पढ़ना, उसको लेके आगे डेडिकेशन, आगे लेकर जाना, ज्यादा उसमें ध्यान देना, वो नहीं होता। सेम हियर, आई कैन अंडरस्टैंड। या सो तो वो मुझे समझ में आ गया था, लेकिन मैंने फिर अपने पेरेंट्स को भी बोला कि मुझे मतलब नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी लगता है मैं बहुत स्कॉलर हूँ क्योंकि मार्क्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन वही है कि, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे अभी 13 पे ना आई डोंट वांट टू टेक साइंस। तो उन्होंने बोला कि इफ यू लीव साइंस व्हाट विल पीपल से, मतलब लो साइंस से आर्ट्स में कौन आता है, यू नो हाउ आर्ट्स इज लुक्ड अपॉन, लाइक साइंस से तो आर्ट्स अंडरस्टूड। क्या कहेंगे and all of that. So और क्योंकि I was dependent on them, तो फिर मैं साइंस छोड़ नहीं पाई, so I had to continue science. तो फिर मैंने एक ऐसा उपाय सोचा कि ऐसा क्या कर सकती हूँ कि साइंस के साथ कुछ और भी हो पाए, so I took मिठी बाई then finally. तो basically you know it was really difficult because I think एक कॉमर्स का भी, जो कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो, उनका सिर्फ देयर स्टडी, उनका पढ़ाई भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उनका जो टाइम जो होता है लेक्चर्स का, वो काफी कम होता है हमारे में से। बस हमें 2-3 घंटे का प्रैक्टिकल है, उसके बाद लेक्चर भी है, अटेंड करो, एंड देन सम पीपल आल्सो टेक क्लासेस, सो इट्स टू मच। सो आई रिमेम्बर व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं प्रैक्टिकल में क्या करती थी कि सबसे जल्दी मैं प्रैक्टिकल खत्म कर लेती थी। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे बस भाग के इधर से जाना ही है, तो मैं बस प्रैक्टिकल का जो हैंडबुक है उसे पढ़ती थी, टीचर की इंस्ट्रक्शन से पहले पढ़ लेती थी कि करना क्या है, एंड आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, तो विच टर्न्स आउट टू बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज मेरे को कोई भी काम जल्दी खत्म करना होता है। तो और तो बिकॉज यू आर लेजी यू वांट टू फिनिश दैट, और इस वजह से हो भी जाता है। तो मुझे याद है कि पूरे इसमें ना मेरा सबसे पहले प्रैक्टिकल हो जाता था, विदाउट कॉपी किसका करूंगी, कि किसी का तो हुआ नहीं मेरे पहले, तो जल्दी जल्दी से मतलब कैसे करके भागना है। इनफैक्ट लेक्चर में भी बहुत सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करके कि प्रॉक्सी लगा दे, प्रॉक्सी लगा दे, प्रॉक्सी लगा दे, जितने बार हो जाता था। मिठी भाई इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो कभी कभी नहीं भी होता था, तो मैं हर महीने में डिफॉल्टर में आ ही जाती थी, लेकिन लकीली बच गई हर साल और डिबार्ड नहीं हुई। Like और we know, science students we know कि भाई कैसे हैंडल करना है। हम एकदम एज पे रहेंगे, बट हो जाएगा, हाँ पास हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली कि बस पहले, मतलब आई रिमेम्बर बचपन में हम क्या, मतलब एक नंबर भी कम आते थे तो मैं शिट, मेरे को एक नंबर कम आए, अभी राइट। पास हो जाओ भगवान, बस फेल ना करो, क्योंकि केटी का फिर पैसा बनना है, वो यू हैव टू आल्सो पे मनी टू गिव द री एग्जाम, तो अगर फेल ना हो जाओ घर से निकाल देंगे, फिर पास हो जाओ बस। तो एवरी ईयर मैं कैसे, मेरे को कभी भी ज्यादा मार्क्स नहीं आए, मैं कैसे जैसे 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 पास हो गई बस। एंड एक चीज मैंने नोटिस किया कि बिकॉज आई इतना, मतलब आई थिंक 5-7-8 घंटे का पहले तो लेक्चर रहता था, फिर रिहर्सल रहते, तो फिर मैं घर आते थे ना, वो ऑल्सो यूज टू टेक ट्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू हैव सम फाइनेंशियल हेल्प। सो मेरे को ये भी याद है कि मैंने इन माय सेकंड सेमेस्टर, आई रिमेम्बर कि मुझे एक बहुत अच्छा इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिला था, एक प्ले का ही था, एंड आई हैड टू मैनेज थिंग्स, सो आई थॉट दिस इज सच अ ग्रेट, और तभी मेरा एग्जाम भी था। तो मैंने बोला यार एग्जाम है, लेकिन इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस थोड़ी ना कर सकते एग्जाम के लिए, बिकॉज एट देन मुझे एग्जाम का तो, मतलब आई एम नॉट इवन सीरियस अबाउट माय स्टडी, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज डूइंग इट। सो आई रिमेम्बर कि मेरा एग्जाम है कल सुबह, और आज भी मैं 10 बजे घर आ रही हूँ, तो मैंने वो सारी चीजें भी की है, और आके रात भर पढ़ के कुछ ना कुछ करके आई पास कैसे भी। बट वन थिंग, हाँ एंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट आई रियलाइज कि व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तुम कोई ना कोई वे ढूंढ ही लोगे। मतलब बिकॉज इवन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि अगर तुम्हारा 8 घंटे का कॉलेज है, उसके बाद डूइंग एनीथिंग, डूइंग योर रिहर्सल्स, और गोइंग टू डू एन इंटर्नशिप दैट इज बेस्ड ऑन अ प्ले, और इवन टेकिंग ट्यूशंस, सो इट्स रियली डिफिकल्ट। बट इट वाज रियली, ऐसा नहीं कि मेरे लिए इजी था, डिफिकल्ट ही था, लेकिन हर एक चीज ना, मतलब बिकॉज मुझे ये था कि मुझे रिहर्सल में आना है, या मुझे प्ले करना है, या मुझे थिएटर करना है, ये मेरा मेन, पता है ना, ड्राइविंग फोर्स था। मुझे पता था कि ये काम मुझे करना है, और ये काम करने के लिए मुझे और बाकी जो काम करने हैं वो मुझे कैसे भी करने होंगे। तो समवेयर इट मोटिवेटेड मी, सो कि मुझे पता था कि ये मुझे करना है, लेकिन ये मैं सिर्फ नहीं कर सकती, मुझे इसके साथ पढ़ना भी होगा, वरना पेरेंट्स घर से निकाल देंगे, या इसके साथ मुझे ये भी करना होगा बिकॉज ट्यूशन, बिकॉज आई विल गेट सम फाइनेंशियल हेल्प। सो आई थिंक उधर वही ड्राइव करता था कि हाँ, मुझे ये चीज अपनी सही रखनी है, और ये सही रखने के लिए मुझे बाकी चीजों को भी सही रखना पड़ेगा। So that was the driving force, and
passion really helps. And someone also said this, I don't remember his name, कि ना when you are passionate you do a lot of illogical things. मतलब इसकी कोई logical explanation नहीं है. Like why am I spending 3 hours or 12 hours for a thing that is not giving me any monetary benefit or anything like that? But yeah, passion is really logicless, but that it really drives you and it does crazy stuff. So yeah. One thing that I would like to mention at this point, if any parent is watching this right now, I just want to say one thing, that it is not at all easy to manage everything together, because I've also done it. Because going to college, you're tired there also, okay? You go there, Yeah. you're doing something that you really don't like. I mean, it's not that we hate, but we're just going and we Yeah, don't but know doing what a we're thing that doing. you know, yeah, you don't want to do it. Yeah. Yeah, it's just sitting like that for 6 hours. It's like just wasting time. Nothing. And then you come out True, of very it, true. then doing theater or coming back home, taking tuitions, and then getting up for the next day again, that whole 6 hours lecture, then exams, preparing for that. It is really hectic. And I think parents need to understand this. There are a lot of parents who don't understand this. I think if we go on talking about it, it will be a long, Yeah. long video. But just Yeah. making people realize it is not at all easy. If someone is doing it, appreciate it. And that's how, parents can motivate us to do something that we like. Yeah, they Because, should. see, it's not like Yeah, they should, but Go say. No, I was just saying कि parents are conditioned. जैसे मैंने कहा कि पढ़ लो, ग्रेजुएट बन जाओ, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर लो, पीएचडी करके टीचर बन जाओ, या तो फिर ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीएससी ये सब दे दो, टेक अ गवर्नमेंट जॉब, तुम्हें पेंशन मिलेगा, you'll have a secured life, then तुम्हें अच्छा जॉब मिला तो you will also get a good boy or a good husband, and then तुम मतलब you will have kids and you will have a very nice family. But no one really talks about your individual self. Do you really want all of this? Like, so they are conditioned, but I hope they start to improve. But till the time they don't, we will have to fight for ourselves, which we are doing. So yeah. But yeah, I am sure that we will be better parents or better human beings who would understand other people's happiness. So looking forward to that. Yes, and see, it's not like we don't understand our parents or something. They definitely want us to live a good life, obviously. But yeah, that's true. We just hope that they understand it at some point, that there's no use of doing something that I don't like for my whole life, because I'm not gonna improve. I'm just gonna be stagnant. I'm just gonna do this for my whole life. Yeah. Which is improving. Yeah, exactly. Instead of doing something that I really like and I can do, मेरे को जानना है उसके बारे में. I want to know everything about it. Yeah. That's the whole point. Yeah. So that's the whole point. And there's a lot of difference between doing something you like and doing something you don't like. Yeah. Like suppose you like maths, तुम्हें अगर maths पसंद है, तुम maths के deep में चले जाओगे, तो maths में ही तुम कुछ भी invent कर सकते हो. या तुम्हें अगर fashion पसंद है, तुम fashion के इतने deep में जाओगे, तुम कुछ भी invent कर सकते हो. या तुम्हें art पसंद है, like we see, हम बचपन में Mad देखते थे, Art Attack देखते थे. These people were artists. But they love their art so much that they have कितना उन्होंने explore कर लिया उसी चीज में. So whatever you like, you can explore anything. Like you're so powerful if you do what you like to do. Yeah. And I think that is something that they need to understand, because if you हमने ही कितने सारे लोगों को देखा है जो शायद नौकरी कर रहे हैं या अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं जो उन्हें नहीं पसंद है. It's really suffocating. Yeah. Yes, it's really suffocating. And one harsh thing I will say कि कुछ ऐसा भी होता है कि चलो पेरेंट्स को चाहिए कि मैं ये बनूं तो मैं ये बन गई, एंड चलो उनके मुंह मतलब उनको देख मतलब उनकी तसल्ली के लिए मैं ये चीज बन तो गई, एंड ओके आई एम डूइंग इट. But we all know that parents हमेशा नहीं रहते. That there's a point when they will leave us or they will leave this world. And at that point, to carry that would be like, it would feel like, okay, now I have nothing. मैं उनकी वजह से कर रही थी, ना ही वो है, मैं जो कर रही हूँ मुझे ना ही वो पसंद है. And I could have been someone else that I wanted to become. So that's why it's really important to stick to what you really want to do. I think, even though it's harsh, but that's the truth. Yes. Okay, now let's discuss about something else. Get that. I was super excited to ask this question. LIC ke advertisement, I don't know. I mean, I'm so happy, so you got this opportunity to be a part of LIC's advertisement. So tell me about it. कैसे था, कैसे हुआ?
it was really great, and I will tell you, I was so doubtful about everything. मतलब I remember जिस दिन मैं shoot पे जा रही थी ना, मतलब सुबह का shoot था, मुझे याद है मैं जिस दिन शूट पे जा रही थी उस दिन मैंने किसी को बताया भी नहीं था आई हैव गॉट समथिंग, या मतलब टू अ पॉइंट मैंने खुद को भी नहीं बताया कि मुझे कोई एड मिला है, यू नो, जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट आई गॉट, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं सच है झूठ है, बिकॉज लाइफ में इतनी बुरी चीजें होती है दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू acknowledge that something great has happened or is happening. And and I remember, and so my parents don't support this, like they don't want me to be an actor because it's a job which is not, you know, stable. And all the things that we hear about Bollywood, this, that, all of that as well. So and when I tell my parents कि अगर बोलूँ कि मुझे शूट पे जाना है तो वो नहीं जाने देते हैं. So I remember I had sent my profile to the people, to the casting people, and I got shortlisted. और उन्होंने मेरी एक self test मांगते हैं, मतलब actors से. So self test is something कि उन्होंने जो script दिया होगा वो तुम्हें shoot करके देना है. And I remember मेरे dad घर पे थे, and we live in a home कि जहाँ पे मैं कुछ करूँगी तो मेरे पापा को दिखेगा. So I remember वो सुबह वॉशरूम में गए थे नहाने, and उस टाइम पे मैंने अपना कर लिया. And I sent, और वो भी सिलेक्ट हो गया. तब तो मुझे और डर लग रहा था कि अभी सिलेक्ट हो गया मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि आफ्टर द सिलेक्शन बिकॉज एवरीथिंग इज वर्क फ्रॉम होम, तो जो लुक टेस्ट होता है, मतलब चेंजिंग कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग, वो भी घर पे ही करना था, एंड उनको फोटोज भेजने थे. नाउ टू डू ऑल ऑफ दैट, आई रिमेम्बर मेरे पापा सब्जी खरीदने गए थे और मैंने उस बीच में कर लिया. एंड जो फाइनल डे था, पिंक चूड़ीदार वाला फोटो जो तूने इंस्टाग्राम पे डाला था, ओह माय गॉड, ओके ओके गो अहेड. तो एंड देन वो सब्जी तो वो कर लिया, तो लुक टेस्ट में भी एवरीथिंग लाइक वेंट वेल, एंड दे सेड अभी 2 दिन बाद शूट है एंड 6 बजे आना है एंड 7 बजे तक होगा. सो ऑल ऑफ दैट. तो मैं बोली अभी मैं बताऊँ कि क्या हुआ है, क्या बोलूं, शूट बोलेंगे तो ना ही कर देंगे. सो आई डू इवेंट्स, मतलब यू नो वॉलंटियरिंग करना इवेंट्स एंड ऑल में, आई ऑल्सो डू दैट कभी कभी. तो मैंने बोला कि एक इवेंट है और बहुत अच्छे से मैंने अपने झूठ को बिल्डअप किया एंड ऑल ऑफ दैट. एंड So I remember when I was even, मैं अपने घर से निकल रही थी, मैं पूरा सेट तक पहुंची, and मतलब I was not even acknowledging the fact that this is an ad or this is LIC or anything. It's really good. It was a great opportunity, but I was not really acknowledging it. मैंने किसी को भी नहीं बताया, ना ही कोई दोस्त, मतलब होता है ना, मैंने खुद को भी नहीं बताया. And but shoot में मैंने मतलब looking at so many people working and the experience and everything, it was so great to just you know, be there and shoot पे सबको देखा. There were so many different actors and talking to them, and then there was a director who was also female, and you know, she was also sharing her experience कि how उसके घर पे भी बहुत सारी restrictions थी and people were conservative, and she being a girl, we know how girls have restrictions and all of that, and she was also telling, you know, just keep going, you know, you will reach where you reach, look at me, even I am here. So she really inspired me, and the ad went really well. मुझे लगा था कि पता नहीं कितने टेक्स लगेंगे क्या, बट 2-3 टेक्स में हो गया. It was great. And then मैं आ गई शूट से, फिर मैं घर आ गई. I was very normal. मुझे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं. I was not even acknowledging the fact till the time वो वीडियो finally आया. I was like, वो ये हो गया है, ये अच्छा काम हो गया. Okay, now I can really acknowledge and do all of that. कि okay, so okay, कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ. Here it is. And but it's also, I was also praying कि ये चीज मेरे पेरेंट्स ना देख ले, क्योंकि फिर तो सब सत्यानाश हो जाएगा, भांडा फूट जाएगा and all of that. So luckily अभी तक उन्होंने नहीं देखा है. Let's hope for the best. And I hope और भी अच्छी opportunities आए फ्यूचर में. I just hope कि you know, your parents be proud while watching that. I just really hope, because see, I haven't met you, dude, but I'm super proud. I told you that day, the moment I saw that, I was like, this is my friend. I'm not really sharing this information with my parents, but like friends like you who really motivate and encourage me, it feels so good, and yeah, really means a lot. It does, and as I said, I really hope the parents will take it so they feel proud. But let's see, ho jayega. Keep going, buddy. Keep going. Okay, we all will be supporting you forever, and you have great talent. Okay, keep doing, and you also speak well. Okay. तू बीच में बन जा, तेरे को जो बनना है. I think उस दिन तेरे बोला था confession या ask me anything. एक बार मैं चालू हो जाती हूँ फिर बोलते रहो, because वो स्कूल में भी ऐसा ही था, you know, education है, ऐसे कुछ भी है, I am here, hey, I am here to speak. भले मुझे कुछ आता नहीं, but I am here to speak. So yeah,
Okay, so yes, I would Yeah. really love you to see on big screen someday, and I'm pretty sure that you're gonna do it. Okay. Thank you. Really Uh, means a lot. तुम्हारे मुंह में घी शक्कर. yes. Okay. So moving ahead. Yeah. Also, there's this question. What is your biggest failure till date? And उसको कैसे handle किया? So, I think my biggest failure was, after 12th standard, I was really feeling very demotivated because आई वॉज रियली श्योर कि मुझे साइंस नहीं करना है. मतलब मैंने मैंने मेरी मम्मी ने सारे मतलब पैसे भी भरे थे, पता है, कि नीट दे दे, जेई दे दे, सीईटी दे दे, आई गिव एवरीथिंग एंड डिसेंट मार्क्स भी मिले. बट आई वॉज रियली श्योर कि ये चीज मुझे नहीं करना है. एंड मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था बिकॉज व्हेन आई वॉज इन 10th, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि टेक आर्ट्स बिकॉज साइंस इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली. Hmm. But at that time I was, as I said, I was very much like I'm the next Einstein and वो सारी चीजें. एंड मैंने 5-6 जगह पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह हुए थे ना, वहां पे भी everybody said कि ओ शी इज तो इसको तो इंजीनियर ही बनना चाहिए, लाइक शी इज वेरी नाइस ब्रेन एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज रियली कि या मुझे बनना ही चाहिए, मतलब मैं ही हूँ. सो फिर ऐसा था कि उसके बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे नहीं करना है ये आगे, तो उन्होंने भी बोला कि हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अभी तुम चेंज नहीं कर सकते, साइंस से आर्ट्स में थोड़ी ना कोई आता है. तो उस पॉइंट पे एक ऐसा दैट गिल्ट, दैट सेल्फ गिल्ट कि अरे मैंने ये खुद ही चुना था. एंड बट Hmm. ऑल्सो आई एम रियलाइजिंग कि मुझे नहीं करना है तो मैं कंटिन्यू करूँ. मतलब Hmm. इट्स लाइक सेलिंग इन एन ओशन दैट कि कोई डेस्टिनेशन है नहीं. Yeah. सो आई थिंक तभी मुझे बहुत आई मुझे महसूस हो रहा था कि आई रियली फेल्ड बिकॉज नाउ मैं चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं ये कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ. तो वो टाइम पे मुझे बहुत ही आई वाज फीलिंग रियली कि क्या मतलब शायद खत्म है मेरी लाइफ बिकॉज मैं वही करती रहूंगी फिर. बट Okay. एंड एट दैट टाइम माय डैड वाज आल्सो इन हॉस्पिटल, लाइक ही हैड सम हेल्थ इश्यूज. तो ऐसा था कि आई कुडंट, मतलब मैं ज्यादा उन पे फोर्स या प्रेशर भी नहीं दे सकती थी कि यू नो Yeah. ये वो. Hmm. तो दैट वाज द टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा फेल लग रहा था और ऑल ऑफ दैट. बट फिर मैंने जैसे जैसे खुद को ये बोला कि इट लाइफ हैपेंस, इट्स ओके, लेट Yeah. मी सी व्हाट आई कैन डू टू माई सेल्फ. जो एंड है उससे देन आई डिसाइडेड. you can start what you would like to do. या सो एंड देन आई मैंने सोचा कि मैंने बहुत सोचा कि क्या कर सकते हैं. फिर मुझे ऐसा आया कि चलो मैं साइंस तो छोड़ नहीं सकती, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज द रियलिटी, बट व्हाट एल्स आई कैन डू. तो फिर आई देन थॉट ऑफ मीठी बाई, क्योंकि मीठी बाई का सब नहीं सुना होगा कि इट इज वेरी गुड फॉर इट्स कल्चरल थिंग एंड उनका बहुत अच्छा है. तो मैंने सोचा कि चलो साइंस तो नहीं छोड़ सकती, बट मे बी साइंस के साथ साथ अगर मैं अपने चीज को कर पाऊँ. हाँ. and and so I'm happy कि मैं I picked myself up and then went there. और सच में उधर से मेरी लाइफ लिटरली बदल, because now I have a purpose, I know what I want to do, what makes me happy. Okay. So there's something that I want to ask, and I think I asked this. I think nahi yaar, I asked this question to everyone who come here. हाँ. So, in order to achieve something, what's the most important thing according to you that one should have or one should do? I think it's consistency. Like definitely you have to be passionate, you have to manifest your thing, you have to visualize yourself as the person you want to become, all of that is important. But to take action consistently, because you will fail and तुम्हें लगेगा कि यार ये नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लूँ, या any field, okay. But consistency is the key. And this, even like take I this UPSC exams, for example, some people give 6 attempts, 7 attempts, and they get selected in the 7th attempt. So what is important is they kept on trying. So Yes. it's not like सिर्फ artist में नहीं, कोई भी field में, I think trying consistently, it is the most difficult job, but at the same time the most effective one. So yeah. Okay. So in the next 5 years, 4 to 5 years, where would you like to see yourself? Well, this is not an interview question. ऐसे नहीं कि this interview is Yeah, then you have to fake it totally. Also, I see myself as a branch manager of your company. Okay. So, yeah, in the next 5 years, I see myself as an actor who is actively working, मतलब is getting a lot kind of roles and a few series or a few films. And I also see myself as a better actor because I am definitely learning in the process, and
I think I will have good hold over my craft in the next 5 years. And I see myself on a set getting prepared for a role, for a web series, or being the assistant director of any project, being the chief AD. I see myself over there. But तभी मतलब because अभी मेरे पास knowledge कम है, but I see तभी मेरे पास I see myself as a more knowledgeable person as well. Okay, that's great, and that smile says everything. How much you love that. Yeah. Okay, so this is the last question for this interview, but before that, how was your experience आज यहाँ पे आके? हमें बताइए कैसे लगा हमसे बात करके? It was see, very frankly, it was amazing because as I said, जो भी चीजें मैं करती हूँ as an artist, as in filmmaking, या मैं कोई meeting भी अगर attend करती हूँ, so I have to be really secretive about it. So I really spoke after a lot of days इतना खुल के. So I really because पहले हम बाहर जाते थे, friends थे, थिएटर के भी दोस्त थे या अलग कॉलेज के भी दोस्त थे, तो बात करने के लिए बहुत सारे लोग थे. लेकिन now at home there are like less people और इतना फोन पे मन भी नहीं करता कि मतलब all of that. So I really मतलब मैंने बहुत टाइम बाद इतना अच्छे से बात किया. मैं जैसे जैसे अपने experiences बता रही थी, मैं I literally relived all the moments and all of that. So it's really great. I'm feeling good and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी. मतलब I'm feeling light also. So it was really great and thank you so much for calling me here and thinking of me. It was really great. I'm really thankful and grateful. I thought of you like पहले I think जब I was planning about this तभी मेरे दिमाग में कुछ लोगों का नाम था. I think 3 to 4 people and you were one of them. And I wanted to talk to you. अब like मेरे को बहुत ऐसे मन कर रहा था. See, this is the first time we spoke like this. ठीक है, इतने देर तक हमने Yeah, exactly. But I don't feel like हम इससे पहले बार बात कर रहे हैं. I think feeling that connection and I think I feel understood when you are listening to me and at the same time I can relate to you as well. So my last question was, Vidipta, what would be your message to everyone out there? It may be anything, like not just related to your field. Yeah, see anybody like तुम्हें लाइफ में मुझे तो यही बोलना है सबको कि लाइफ में whatever makes you happy, just do it. Don't listen to the society or anybody. Just do whatever makes you happy. If you're happy with जो भी चीज है जो आपको खुश रखता है वो करो. Be happy because happiness is very important. Your mental health is very important. So I wish कि आप सब लोग खुश हो और अपने लाइफ में खुशी को चुनो. And I really wish कि आप लोग को जो भी चाहिए लाइफ में वो आपको मिले. And just keep at it. Keep working for your own happiness and achieve happiness. That's it. Oh my God, that was so good, man. Thank you so much. Okay, Vidipta, those were the questions and आज का जो भी conversation था काफी अच्छा था. It's already been 1 hour. Thank you for giving your time and I hope we meet again. Yeah. Thank you so much for this. This was really great. Yeah, thank you so much for coming, man. It was really great for me too. मैंने भी बहुत दिन बाद like after weeks I've spoken to someone, so it really makes me feel good too. So we can meet again like this. तब तक शायद हम भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रो हो गए रहेंगे. हाँ, definitely. It'll be so good to see the journey. We are experiencing each other's journey. It's really great. Yes. Thank you, Vidipta. Thank you so much for joining. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah, bye. Bye. I'm feeling so good right now. मेरे को बहुत अच्छा लगा उससे बात करके because she is one of those friends जिससे मैं अपने फ्यूचर के बारे में मुझे क्या करना है वो सब डिस्कस करते हैं. वो भी उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं. हम रोज बात नहीं करते हैं बट अगर कुछ भी हो गया ना उसके रिलेटेड, हमारे पेरेंट्स ने अगर कुछ बोला या फिर हमने कुछ अचीव किया, we really share that with each other. I'm pretty sure कि आप सबको भी इंटरव्यू काफी रिलेटेबल लगेगा क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये सब चीजें उनके साथ भी होता है. And I would just like मैं बहुत ज्यादा एंग्री होगी. I would like to just say that जैसे विदिता ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो. तुम्हें तुम्हारे खुशी के लिए कुछ करना है तो करो because you are the one who is going to be responsible for your future and for your happiness. So do whatever you like. चाहे वो छोटा चीज हो या बहुत बड़ी चीज हो. Okay. So I'll be meeting you guys with more people like this, more talented friends and more amazing stories. Until then, it's Dharani Krishnan signing off. Take care and bye-bye.